الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو نہ دنیا میں بظاہر کوئی یونیورسٹی تھی، نہ کوئی ادارہ تھا، نہ کوئی ایسے مدرسے تھے جیسے آج کے زمانے میں۔ اللہ اور رسول کی خالص منشا یہ ہے کہ بندہ مومن سچا پکا کردار والا مسلمان بن جائے، تو یہ کسی یونیورسٹی اور ادارے سے کم نہیں۔ حضرت عمر کو نبی علیہ السلام کی تربیت نے ایسا حاکم بنایا تھا کہ ان کی رعایا میں، یعنی ان کے انڈر میں جو لوگ رہتے تھے، وہ کبھی ظلم و زیادتی ایک دوسرے پہ نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ ان کے دور کے بارے میں یوں مثال دی جاتی ہے، ان کا دور ایسا تھا کہ بکری اور شیر ایک ساتھ چرتے تھے۔ عقل کہتی ہے عقل کے خلاف کی بات ہے، لیکن آپ سوچیں کہ اگر آپ کا دل مطمئن رہے، پیٹ بھرا رہے، تو آپ دوسرے کے گھر میں کیوں چوری کرنے جائیں؟ تو حضرت عمر نے ہر اپنے رعایا میں رہنے والے ہر شخص کو، جانور کو، اس کا حق ادا کیا۔ تو اللہ اور رسول کی خالص منشا یہ ہے، آپ اپنی زندگی میں مسجد بنا سکتے ہیں تو بنائیں، مدرسے بنا سکتے ہیں تو بنائیں، نہیں بنا سکتے آپ سچے پکے مسلمان بنیں۔ یہ اللہ اور رسول کی خالص منشا۔ مدرسوں میں چندے دینا، مسجدوں میں چندے دینا یقیناً نیک کام ہے، آپ پہ فرض واجب نہیں کیا گیا، لیکن 5 وقت کی نمازیں کیوں فرض کی گئی؟ کبھی آپ نے سوچا؟ 5 وقت کی نمازیں اللہ نے فرض کی کہ بندہ ہاتھ منہ دھو کے صفائی ستھرائی کے ساتھ میری بارگاہ میں آئے اور کہے کہ اللہ اکبر، کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، پھر وہ میری تعریف بھی بیان کرے الحمدللہ، پھر میرا رحمان اور رحیم ہونا بھی قبول کر لے کہ میرا رب رحمان ہے، میرا رب رحیم ہے، اور پھر اتنا ہی نہیں، پھر یہ بھی قبول کر لے کہ وہ دن جس دن کوئی سہارا نہیں ہوگا، اس دن کا مالک میرا رب ہے۔ جب اتنے یقین ہمارے سینوں میں بیٹھ جائیں گے تو پھر ہم کبھی برائی کی طرف نہیں جائیں گے، کبھی برائی کی طرف نہیں جائیں گے۔ یعنی دین اسلام کا جو نظام الاوقات ہے، دن بھر جو دین اسلام آپ سے کراتا ہے، اس کی منشا یہ ہے کہ آپ نیک بھلے انسان بن جائیں۔ یقین جانیں، یہ امام صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، مسجدوں میں چندے دیں، مدرسے نہ بنائیں، لیکن لوگ مدرسے بنا کے بھی جہنم میں جائیں گے اور کچھ مدرسے نہ بنا کے بھی جنت میں چلے جائیں۔ کون؟ جو اپنے رب کی منشا کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ نبی علیہ السلام کی ظاہری زندگی دیکھیں، کوئی ظاہری طور پہ آپ کو مسجدیں بنائی نبی علیہ السلام نے، مدرسے، یونیورسٹیز، ادارے نہیں ملے، لیکن ایسے افراد تیار کیے نبی علیہ السلام نے جسے دنیا صرف سچا نہیں کہتی بلکہ صدیق اکبر کہتی ہے نا، کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے زیادہ بڑا کوئی سچا ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے نا۔ کسی کو دنیا عمر ابن خطاب کہتی ہے، جنہیں دیکھ کے شیطان بھی کتنے دور بھاگ جایا کرتا ہے نا، اور ہمارا ماجرا کیا ہے کہ مولانا صاحب کو دیکھ کے ہم بھاگ جاتے ہیں، منہ چھپا گئے، امام صاحب آ رہے نماز کے لیے نہ کہنا، یہ ہمارا رویہ ہے۔ تو دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ دوسرے اچھے کاموں کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات، ہماری گھر کی مائیں بہنیں بہت کرتی ہیں اور اس پہ ان کی حوصلہ افزائی بھی ہونی چاہیے، وہ بہت کرتی ہیں، بہت نیک کام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا اپنے طرف بھی توجہ رکھیں۔ دین اسلام یہ چاہتا ہے آپ 5 وقتہ نمازی ہو جائیں۔ پہلی بات، فرائض کی پابندی نہیں کریں گے تو آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، نمازوں کی پابندی کریں اور باجماعت مسجد میں نماز پڑھنا سیکھیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، میں جوانوں کو حکم دوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے ابو داؤد شریف میں، کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے جوانوں کو حکم دوں کہ ان گھروں میں آگ لگا دیں جن گھر کے مرد مسجدوں میں جماعت سے نماز نہیں ادا کرتے، گھر میں پڑھ لیتے ہیں، مسجد تک نہیں جاتے۔ مسجد تک جائیں گے، کوئی کمی زیادتی ہوگی، امام صاحب آپ کو سمجھا دیں گے۔ کبھی امام صاحب نے دیکھا کہ آپ رکوع صحیح سے نہیں کر رہے ہیں تو امام صاحب آپ کی اصلاح کر سمپل سی بات ہے جو ہو سکتا ہے۔ ہم مسجد نہیں جائیں گے تو ہماری اصلاح کون کرے گا؟ ہم گھر میں پڑھ لیتے ہیں تنہا۔ تو تھوڑا سا اپنا مزاج بنائیں، نماز ادا کریں اور با جماعت نماز ادا کریں، ہے نا، اور آپ کو خوش نصیب ہے کہ آپ کے امام صاحب آپ کے گھر تک آتے ہیں، ورنہ مقتدی لوگ مسجد نہیں پہنچ پاتے۔ یہ دور پرفتن ہے نا، تو اللہ کا 1000 بار شکر ادا کریں اور نمازیں اس کے وقتوں پہ ادا کریں۔ یہ اللہ اور رسول کی سب سے بڑی رضا اس میں ہے کہ آپ سچے پکے مسلمان بن کے دکھائیں، سچے پکے مسلمان۔ آپ غریب ہیں، صدقہ نہیں دے سکتے، مت دیں۔ کہاں سے دیں گے؟ نہیں دے سکتے، کوئی بات نہیں، لیکن کبھی وہ کہا جاتا ہے نا کہ کسی ذلیل آدمی کو عزت دینا اور کسی عزت والے کو ذلیل کرنا، اس میں زیادہ برا کام ہے عزت والے کو ذلیل کرنا۔ کوئی ذلیل آدمی تھا، آپ نے اسے عزت دے دی، بڑے اسٹیجوں پہ بیٹھا دیا، یہ زیادہ بڑا کام نہیں ہے، بلکہ عزت والوں کی عزت محفوظ رکھنا یہ زیادہ بڑا کام۔ تو اپنے آپ کوئی نئی نیکی نہیں کر پاتے، کوئی بات نہیں، اللہ رسول نے جو فرض کی ہے عبادتیں
اس کی پابندی بہت ضروری، نہایت ضروری. ہو سکتا آپ نئے کپڑے نہ پہن پائیں، صدقہ خیرات بہت زیادہ نہ کر پائیں، لیکن کم از کم جو 5 وقتہ نمازیں ہیں اور دیگر چیزیں اس پہ ایک دم سختی کے ساتھ پابندی کریں. اور 5 وقتہ نماز میں ہم کیا بہانہ دے سکتے ہیں کہ ہم نہیں پڑھ پاتے؟ وہ ایک بزرگ فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے، اور سوچیں وہ بزرگ جو کہتے ہیں یقیناً حق فرماتے ہیں، 7 سال انہیں نفل عبادت کرنے سے روک دیا، فرائض نہیں، رات میں اٹھ کے وہ نفل عبادت نہیں کر پاتے تھے. تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میرے جسم میں جان بھی ہے، پانی بھی بھرا ہوتا ہے، لوٹا بھی رکھا ہوتا ہے، مصلے بھی ہیں، پھر بھی تو نے توفیق لے لی ہے، مولا مجھے معاف کر دے، میں راتوں میں نماز نہیں پڑھ پاتا. آپ دیکھیں آج ہمارے جسم میں طاقت نہیں ہے، ہمارے گھروں میں پانی نہیں ہے، ہماری مسجدوں میں بہترین انتظامات نہیں، جاڑا ہو تو گرم پانی، ٹھنڈی ہو تو گرمی ہو تو ٹھنڈا تازہ پانی، سب کچھ اویلیبل، پھر بھی ہم نمازوں سے دور ہیں، اللہ سے دور ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اور اس کی ناراضگی کی علامت اور نشانی ہے. پھر یاد رکھیں آپ کتنے بھی تعویذ بنوا لیں، کتنا بھی آپ ذکر کرا لیں، اللہ ناراض ہے تو آپ کا حاصل کیا ہونا ہے؟ اللہ ہی تو برکت دینے والا. ہم دعا کر سکتے ہیں، قبول کرنے والی ذات اللہ کی. ہم آپ کے لیے کچھ لکھ سکتے ہیں، اثر دینے والی ذات اللہ کی. ورنہ دنیا میں ہم ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں لوگ بڑی بڑی دوا کی گولیاں کھاتے ہیں، اثر ہی نہیں کرتی. مؤثر حقیقی وہی، یعنی دنیا میں جو کچھ ہوتا کسی کی ذات سے ہے، کرتا وہی. یہ سب دنیا والے جو ہیں وہ وسائل ہیں، ذریعہ ہے جن سے اللہ کرا دیتا ہے، اصل میں کرنے والا وہی. تو ہمارا رشتہ اگر اسی رب سے کمزور ہوگا اور اسی کے فرائض کی ہم پابندی نہیں کریں گے تو پھر بتائیں دنیا میں ہمارا بنے گا. یہ سمجھداری کی بات ہے اور سوجھ بوجھ کے ساتھ آپ اپنے زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں. آج اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ ہم سچے پکے مسلمان بنیں. ہم آپ سے کوئی چندہ نہیں مانگتے، 500 1000 10,000 دے دی. آپ کو سچا پکا مسلمان بننا ہی آپ کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. اگر آپ ان پابندیوں کے بعد آپ مسجدیں بنا لیتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے، اس پہ اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا. آپ مدرسوں میں تعاون کر لیتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے گا. آپ دوسرے غریب بھائی کی مدد کر لیتے ہیں تو یہ بھی بڑا نیک کام ہے نا. لیکن پہلے گناہوں سے بچنا سیکھیں، برائیوں سے دور رہیں اور فرائض کی پابندی کریں، ہے نا. اگر ہماری زندگی میں کوئی برائی ہے، چلے ہم جھوٹ بہت بولتے ہیں، میرے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں، نشے کی عادت ہے، اور نشہ ہوتا ہے. نشے کا چھوٹا فارم اگر آ جائے تو وہ نشہ ایسا نہیں کہ نشہ ڈٹ. اب تو ایسی شرابیں آتی ہیں، کہا جاتا ہے 2% الکوہل، 1% الکوہل. فروٹ بیئر لوگ کو کنفیوز کر رہے ہیں، بیئر کی جگہ فروٹ بیئر کی عادت ڈال دیا، پھر بیئر آئے، بیئر سے پھر برانڈی. تو ہمیں ہمیشہ ان چھوٹی چھوٹی برائیوں سے اپنی حفاظت کرنی ہے، اور ساتھ میں نماز وغیرہ کی پابندی نہایت طور پہ کریں. اگر آپ اپنے گھر پہ ہیں، محلے میں، تو آپ مسجد پہنچ جائیں. آپ 15 منٹ پہلے گھر آنا ہے، پہلے نماز پڑھ لیں، پھر آئیں گھر اطمینان کے ساتھ آئیں. گویا آپ 7:30 بجے محلے میں آئے، ٹھیک ہے، گھر جائیں گے، کپڑا اتاریں گے، لیٹ ہو جائے گا، نماز پڑھ کے اطمینان سے گھر آئیں. اور نماز پڑھنے کی بھی برکت آپ کے گھر میں داخل ہوگی. اور نماز پڑھنے کی تو برکتیں بے انتہا ہیں جو بیان سے باہر ہے. یہ پڑھنے والے ہی جانتا ہے اسے کیا عطا کیا جاتا ہے. اور نہ پڑھنے کی جو وعیدیں ہیں وہ بہت سخت. نبی نے فرمایا جو گھر میں پڑھے مسجد میں نہ پڑھے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے جوانوں کو حکم دوں کہ ان کے گھروں میں آگ لگا دوں. آپ بتائیں کہ جن کے گھروں میں نبی علیہ السلام کا جی چاہے آگ لگانے کا، اس گھر میں برکت ہو سکتی؟ کبھی نہیں ہو سکتی، ناممکن چیز ہے نا. تو ہم اگر نمازیں نہ پڑھیں جماعت سے تو یہ عالم ہے، اور جو نمازی نہیں پڑھتے، بالکل نہیں پڑھتے، ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر. اور فرمایا گیا نماز کفر اور ایمان کے بیچ فرق ہے. تو جو نماز نہیں پڑھتا گویا وہ کفر کے دروازے پہ کھڑا ہے نا. کتنی کوئی ہمیں دنیا بھر کی گالیاں دے دے، لیکن ایمان ہمارا اتنا تو سلامت ہے کہ ہم یہ گالی برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی ہمیں کافر کرے، ہے نا. ہمیں اپنے ایمان سے اتنی تو محبت ہے. نبی صادق نے فرمایا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھے گا گویا وہ کفر کے دروازے پہ کھڑا ہے. کب وہ کفر کے طرف چلا جائے کوئی پتہ نہیں. تو ہمیں نمازیں پڑھنی ہے، ہر حال میں نمازیں پڑھنی ہے نا. اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں. اپنے گھروں میں کبھی بیٹھ کے آپ میلاد تو نہیں کر سکتے، قرآن خوانی کا مطلب ہوتا ہے قرآن پڑھنا. اب تو کنفیوز کر دیا ہے قرآن خوانی گینگ نے جو چلتی ہے 200 روپے والی، کہ قرآن خوانی تب تک نہیں ہوگی جب تک مولانا نہیں آئیں گے. آپ خود بیٹھیے، اپنی بیوی کو بیٹھائیے، بچوں کو بیٹھائیے، کر لیجیے قرآن پڑھ لیجیے، ہوگی قرآن خوانی. کوئی ضروری نہیں ہے قرآن مکمل کیا جائے. کیوں امام صاحب؟ کوئی ضروری نہیں.
आप बैठ के कुल हुवल्लाह शरीफ सब लोग पढ़ लीजिए, हो गई। कुरान मतलब कुरान, और खानन मजदर से बना है खानी, या फारसी का लफ्ज है खानन, जिसका माने होता है कुरान पढ़ना। आप बैठ के कुरान पढ़िए, रोज का मामूल बनाइए कि फजर बाद सब लोग बैठ के कुरान मजीद पढ़ें। कितनी अच्छी बात होगी, कितनी बरकतों का नुज़ूल हो। और देखें फितरी सी चीज़ है, ज़रा सोचें आप मौलाना साहब से दुआ करने को कहेंगे, मौलाना साहब यकीनन आपके लिए दुआ करेंगे, सीधी सा बात। लेकिन मौलाना साहब का खुद का बच्चा बीमार हो जाए और एक आपका बच्चा बीमार, आप बताएं किसके लिए ज़्यादा शिद्दत से करें? अपने बच्चे के लिए ना। ये फितरी सी, ये बुराई नहीं है उनकी, ये नेचर है कि बंदा अपने ऊपर जो तकलीफ गुजरती है उसके लिए ज्यादा अल्लाह की बारगाह में आहो बुका कर लेते। हाँ, कुछ अल्लाह वाले ऐसे होते हैं जो मखलूक का दर्द महसूस करते हैं, लेकिन बहरहाल ये उमूमी चीज नहीं है, खास खास में पाई जाती है। तो आप जब अपने रब की बारगाह में आप हाथ उठाएं और उससे रो रो के मांगे, मौला हम तेरे दर पे आ गए, हम गुनाहगार से ही बहुत कोशिश करते हैं गुनाह छोड़ने की, नहीं छूटता, जो बुराई है सब अल्लाह से नहीं बताएंगे तब भी वो जानते। वहां कोई मक्कारी नहीं होनी चाहिए कि या अल्लाह हमने नमाज पढ़ी, हम बहुत अच्छे ना। नमाज पढ़ के आप कहिए या अल्लाह मेरे अंदर फलानी फलानी बुराई। आप दुआ की हालत में अपनी बुराइयां याद किया कीजिए, ये मुजर्रब वजीफा है बुराइयां छोड़ने का। आप जब नमाज से फारिग होकर दुआ कीजिए तो दुनिया का सब कुछ भलाइयां मांगिए, साथ में ये भी गौर कर लीजिए पहले कि हाँ हम कभी सुर्ती खा लेते हैं, सिगरेट पी लेते हैं, कभी माँ बाप से मेरे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, रिश्तेदारों से अच्छे नहीं हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता। आप अल्लाह की बारगाह में बैठ जाइए, या अल्लाह मेरे अंदर ये बुराइयां हैं, तू अपने करम से इसे दूर। हम दुनिया के किसी तबीब की बारगाह में नहीं जाते, हम 5 वक्ता तेरी बारगाह में हाजिर होते हैं, अपने करम से मेरी बुराइयां दूर और मेरे अंदर वो भी बुराइयां दूर कर दे जो मैं नहीं जानता। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला करम फरमाएगा और आप सच्चे पक्के मुसलमान बने। और याद रखें, कल्बे मोमिन ये काबे शरीफ से भी अफजल है ना। यानी मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप मस्जिदें ना बनाएं, सच्चे ना बनाएं नहीं कह रहा हूँ। अगर अल्लाह आपके पास वसत नहीं है, गरीब हैं, आप सोचते हैं मैं कैसे बड़े बड़े काम करूँ, दीन इस्लाम के अंदर निहायत गरीब आदमी है उसके लिए भी जगह है। नबी अलैहिस्सलाम ने किसी साहबी को सदके करने का हुक्म दिया, तो गालिबन उनके पास खजूर भी नहीं था, नहीं उनसे पूछा क्या है, तो फरमाया मेरे पास चंद खजूर है। कहा तुम जाओ मदीने का सबसे गरीब आदमी को सदका करो। तो वो गए और लौट के आए, फरमाया कि हुजूर पूरे मदीने में मुझसे और मेरे घर वालों से ज्यादा गरीब कोई नहीं। ऐसे गरीब के लिए भी दीन इस्लाम में जगह है। नबी ने फरमाया जाओ इस खजूर को तुम खुद खाओ और अपने घर वालों को खिला दो, अल्लाह कबूल करे। ठीक है, तो देखें इतनी वुसअत दीन इस्लाम में। जबकि जो सदका वाजिबा होता है वो आप खुद नहीं खा सकते। वाजिब सदका मतलब ज़कात वगैरह का पैसा है ना। बाकी जो ऐसे हम जैसे कभी खाना बनाया, ऐसे ही वाजिब जरूरी नहीं था आपके, आपने खाना बनाया कि मदरसे के बच्चों को खिला दें तो खा लेंगे, उसमें से कोई हर्ज नहीं है ना। वो नफली सदका होता है, उसमें कोई हर्ज नहीं। कोई भी मुसलमान खा ले, अमीर मुसलमान भी खा ले तो गुनाह नहीं। लोग समझते हैं गुनाह है, या फिर वो क्या होता है अकीका वगैरह होता है तो घर के लोग नहीं खाते, ऐसा कुछ नहीं। तो देखें दीन इस्लाम में इतनी, आप नई मस्जिदें बना सकते हैं, मदरसे बना सकते हैं, खुद को तो तब्दील कर सकते हैं, आप खुद तो नमाजें पढ़ सकते हैं, आप खुद तो झूठ गीबत बुराइयों से बच सकते हैं। तो आप कम से कम वो करिए। और बिलखुसूस ये नौजवान कम उम्र बच्चे, ये उम्र होती ही ऐसी कि इंसान के अंदर ताकत ज्यादा होती है, शहवानी ताकतें, बुराइयों का जज्बा ज्यादा होता है। लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखें, आप अपने ख्वाहिशात की कभी तकमील नहीं कर सकते। जैसे सोना जिसको पसंद हो वो खूब सोए, आप बताएं वो 10 दिन सो ले, 11वें दिन उसको नींद नहीं आएगी। आप बताएं आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। किसी को शराब पसंद है, 1 गैलन बैठा के पिला दीजिए, अगले दिन पिएगा कि नहीं पिएगा? ख्वाहिशात से लड़ा जा सकता है, उसको पूरा नहीं किया। ये बात हमेशा याद रखें। बुरी ख्वाहिशात से लड़ना सीखिए, उसकी तकमील मत कीजिए। कभी मन किया कि चलें आज पिक्चर टीवी देख लें, नहीं, ये बुरी बात है, अल्लाह रसूल नाराज होते हैं, हम ये काम नहीं करें। ठीक, आप उससे बच गए। उसके बाद आपका मन किया कि चलें आज फजील बहुत ठंडी है, ना कुछ, ये गलत बात है, गुनाह अजीम है। नमाज छोड़ना गुनाह कबीरा, अपने हटाए कमल नहीं पड़े, हर हाल में पड़े। आप ये करना सीखें। कभी आपकी ख्वाहिश पूरी, कितना भी सो लें आप, आपकी नींद नहीं पूरी होगी, अगले दिन नींद आनी फितरी सी चीज है। आप सीखें, हम उतने ही सोएंगे जिससे अल्लाह रसूल की नाराजगी ना हो, यानी फजर की नमाज हमारी छूटेगी, इतने ही सोइए, रात भर सोइए, कौन मना करता, लेकिन फजर में उठ जाइए, सिंपल सी बात। और आप लोग बिलखुसूस जो नौजवान हैं और उम्र दराज लोग भी, कभी ख्वाहिशात के पीछे मत भागें। बहुत सी बुरी ख्वाहिशात दिल में आती है, बहुत से बुरे काम करने का जज्बा आता है। आप कितना भी बुरा काम कर लें,
अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो लौट के आना रब की ही तरफ है, और दुनिया में नहीं आएंगे तो रब की क़यामत के दिन तो आनी ही उसके तरफ। और हम पढ़ते हैं ना, जब कोई मर जाता है, कोई मुसीबत आती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह के हैं और हमें उसी की तरफ लौटना है। तो समझदारी किसमें, जिसके तरफ लौटना है हम सारी जिंदगी उसी के हो के गुजारें, उसी के मर्जी के मुताबिक गुजारें। यही समझदारी की बात है ना, इसी में तो हमारी भलाइयाँ छुपी हुई हैं। लेकिन हम जवानी के जज्बे में ये सारी बातें भूल जाते हैं। ऐसे ऐसे नौजवान मजहब इस्लाम ने हमें दिए हैं कि वो नौजवान बैठ के मस्जिद नबवी में हदीस पाक का दर्स दे रहे हैं, है ना। नौजवान बैठ के मैदान जंग में अपने दीन इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। नौजवान कैसे, जो दिन में जंग करते हैं और रात में अल्लाह की बारगाह में रोते हैं, अल्लाह की बारगाह में रोते हैं। आप अल्लाह के बारगाह में आ जाइए, खूब रोइए, खूब तड़पिए। अल्लाह की बारगाह में जितना कमजोर होंगे, कमजोर आजिजी के साथ पेश होंगे, इंशाअल्लाह दुनिया में उतने मजबूत हो जाएंगे। हजरत उमर का नाम सुना आपने, आज भी हजरत अली का नाम आपने सुना है। अल्लाह से कितना डरने वाले, आपको मालूम, एक बार असर की नमाज छूट गई तो नबी अलैहिस्सलाम ने सूरज पलटा दिया। नबी अलैहिस्सलाम उनके गोद में आराम फरमा थे, तो हजरत उमर की असर, हजरत अली की असर की नमाज छूट गई। कौन? हजरत अली, जिन्होंने बाबे खैबर तना फेंक दिया, उठा थे ना, ताकतवर आदमी, लेकिन सोए हुए थे। नमाज छूट गई तो आंख से आंसू आ। बताएं, जिसे दुनिया की बड़ी बड़ी फौजें नहीं हरा सकी, नमाज छोड़ने पे उसके आंख से आंसू आ जाए, हैं? तो वहां जितना आप अपने आप को गिराएंगे दुनिया में उतने बुलंद होते जाए, है ना। आज सारे बच्चे हजरत अली का नाम जानते हैं, है कि नहीं? हमारे घर के नौजवान बच्चे जानते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं हम, हमारे बड़े, हमारे असलाफ हैं, मुसलमानों के चौथे खलीफा हैं। तो कहने का मतलब ये कि अपनी जवानियां बर्बाद मत कीजिए, ये उम्र का गोल्डन पीरियड होता है। अब मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा है, रियाजत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, जो कुछ करना हो अभी कर लो, अभी नूरी जवां तुम। और यहाँ अक्सर सब लोग हम जवान के ही जुमरे में आते हैं, कोई बूढ़ा नहीं यहाँ पे, वो वाला बूढ़ा कि बैठ के, कोई बैठ के, सब लोग आप लोग खड़े होकर नमाज पढ़ते, कोई बैठ के नमाज नहीं पढ़ते। तो बूढ़ा मतलब वो जिसको बैठने उठने में तकलीफ हो जाए, है ना, सजदा ना कर पाए, रुकू ना कर पाए, कुर्सियां बिछानी पड़े उसके लिए। तो नमाजों से, मस्जिदों से अपने रिश्ते को मजबूत करें। और ये भी याद रखें, आपके जितने मसाइल हैं इस जमाने में, बेचैनी है, परेशानियां हैं, माशी दिक्कतें हैं, ये सारे मसले सिर्फ तालीम और दुनियादारी से हल नहीं हो जब तक आपका रिश्ता आपके रब से मजबूत नहीं है। दुनिया देखें, लोगों ने बड़ी बड़ी पार्टियां ज्वाइन कर रखी, पूछे क्यों करते हैं, तो कहते हैं इस जमाने में बचने के लिए जरूरी है। आप बताएं, क्या मुसलमान बच गए? आज मुसलमान पे जुल्म नहीं होता? होता है जनाब। सारे मुसलमान भी अगर गैरों की गोद में जाके बैठ जाएं, फिर भी वो जुल्म मुसलमान पे करेंगे। समझ रहे हैं? आप जुल्म से, तशद्दुद से, दुनिया की बेरहरवी से तभी बच सकते हैं जब आपका रिश्ता आपके रब से मजबूत हो। इस बात को समझिए, मस्जिदों में आइए, मस्जिद से अपने रिश्ते को मजबूत कीजिए, इमाम साहब से, नेक लोगों से। आज कुछ बात हो रही थी, मदरसे में ऐसे बैठे थे बच्चियों के साथ, तो उन्होंने कहा कि हमें साहबा किराम, ये सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत याद नहीं आती, हम लोग वैसे क्यों नहीं याद कर पाते हैं? जैसे उनका कहना यह था कि जैसे हम अपने उस्ताद साहब से डर पाते हैं, वैसे अल्लाह से क्यों नहीं डरते, है ना। तो मैंने कहा कि इनकी बहन वहाँ पे उस्ताद है, तो मैंने कहा जैसे आप अपने उस्ताद साहब से डरती हैं, पहले अल्लाह अपने नेक बंदों की मोहब्बत आपके दिल में डालता है, पहले अल्लाह अपने नेक बंदों का खौफ डालता है, फिर अपना खौफ डालता है। ऐसा नहीं होता डायरेक्ट कोई अल्लाह से डरने लगता है, अल्लाह से नहीं, पहले आप नेक लोगों के करीब होंगे। पता चला पहले जैसे वो बच्चियां इनकी बहन के करीब हुई, आप इमाम साहब के करीब हुए, धीरे धीरे इमाम साहब ने समझाया, आपको रसूलुल्लाह की मोहब्बत आ गई, उसके बाद आप अल्लाह के करीब हो गए, अल्लाह की मोहब्बत आ गई। ये सब कुछ धीरे धीरे हो जाता है और हम अपनी जिंदगी बेहतरी के साथ गुजारते हैं। तो थोड़ा नेक लोगों के पास बैठना भी सीखें, मस्जिद में जाएं, थोड़ा इमाम साहब को वक्त दें, इमाम साहब से कहें कि आज हम, और ऐसा नहीं कि इमाम साहब कहीं जा रहे हैं तो इमाम साहब वक्त ही नहीं देते, ठीक है, उनकी अपनी मसरूफियात हैं, कभी इमाम साहब नजर आ जाए तो बैठ जाएं उनके पास। तो बहरहाल नमाज से, पहली बात इबादतों से, नमाज से, अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करें और अल्लाह वालों से अपना रिश्ता मजबूत, नेक लोगों के पास बैठा करें। इससे इंशाअल्लाह ताला आप में मुस्बत तब्दीलियां आएंगी, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। और दूसरी बात, जहाँ इबादतें करें, नमाज पढ़ें, रोजे रखें, तिलावत कलाम पाक करें। रमजान के दिन आ रहे हैं, है ना। अब बताइए, नौजवान बच्चे हमारे हैं, उनके एग्जाम्स रहते हैं, वो रोजे छोड़ देते। हमने ऐसी नौजवान बच्चियों को देखा है जो काफी छोटी हैं, उम्र भी काफी कम है, कमजोर भी हैं, फिर भी वो पूरे रोजे रहती, एग्जाम भी दे रही होती हैं, अपने काम भी कर रही होती हैं।
हम इतने कमजोर नहीं कि हम रोजे छोड़ें, अभी तो जवानी के ही हम, हमें ये सब नहीं करना। ठीक है, कौन सा एग्जाम हॉल में आप बहुत पिज्जा बर्गर खा रहे हो, एग्जाम हॉल में तो ऐसे ही भूखे बैठना है कि नहीं, और कौन सा वहां हमें लड़ाई करनी होती है, वहां कौन सा हमें एग्जाम हॉल में कोलू चलाना होता है ना। हमारे असलाफ ने तो मुश्किल हालात में रोजे रखे। जंग बद्र जो इस्लाम की पहली जंग है, वहां साहबा रोजा रख के जंग करते थे और खाने को कुछ ना होता है ना। एक खजूर को चूस के, खा के नहीं, चूस के इफ्तार करते, सहरी करते और उसी खजूर को चूस के इफ्तार करना, ये आलम। हमें ऐसा नहीं, सहरी में बेहतरीन खाने मौजूद हैं, इफ्तार में अल्लाह ने हमारा दस्तरखान वसी किया हुआ है, बगल अगल वाले रिश्तेदार भी आके खा लेते हैं, तो उसका शुक्राना तो ये है कि वक्त पर उसकी इबादत की जाए, उसने जो अहकाम फर्ज किए हैं वो काम किए जाएं। अगर नहीं करेंगे प्यारे, तो अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया है, क्या मोमिनों के लिए वक्त नहीं आ गया कि वो अपने रब की तरफ लौट आए? तो यकीनन अब इससे ज्यादा निचाई के दिन तो नहीं आने हैं ना। इतना ज्यादा जुल्म तशद्दुद हो रहा है, फिर भी हम बेदार ना हो, ये तो बड़ी बेकार बात है। वो कहा जाता है ना, उठ बांध कमर, ताखीर का मौका न तजब्जुब का महल है, ये वक्त अमल वक्त अमल वक्त अमल है। यहाँ किसी ताखीर की आजत नहीं, कल से पढ़ेंगे, आज से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, जुमा से पढ़ेंगे, सनी ना ना ना। अभी हमें ये तहैया कर लेना चाहिए यहीं बैठे बैठे कि हमें अब नमाजें नहीं छोड़नी। और जमात से मस्जिद में इमाम साहब के पीछे संस्पोश मस्जिद, आपकी ज़ियारत होगी तो हमें खुशी भी होगी कि मिलाद के जरिए आप लोग आए, इनकी ज़ियारत होती है, आपकी होती रहती है। ये बड़े अफसोस की बात है कि अगर मोहल्ले के इमाम साहब आपको नहीं पहचाने, बड़े अफसोस की बात है। ये बात याद रखें, अल्लाह से रिश्ता मजबूत करें और अल्लाह वालों से रिश्ता मजबूत करें, और हमारी माएँ बहनें भी घरों में नमाजों का एहतमाम करें, कभी नमाज न छोड़ें। बहुत बड़ी नहुसत है ना। कहा गया, जिस घर में बेनमाजी की निगाह पड़ जाए वहां बरकत नहीं होती। अब आप सोचें, जिस घर में खुद सरापा बेनमाजी मौजूद, फिर क्या होगा? तो नमाजों की पाबंदी करें। दूसरी बात, अपने अखलाक बहुत अच्छे रखें, अपने अखलाक बहुत अच्छे रखें सबके साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपनी बीवियों के साथ, हमारी माएँ बहनें अपने बच्चों के साथ, शौहर के साथ, सबके दोस्त यार के साथ, सबके साथ अखलाक अच्छे रखें। ये दुनिया हमें बदअखलाकी की तरफ दावत दे रही है। हमारे नौजवान को गाली देने पे उभारा जाता है, बुरे अल्फाज निकालने पे उभारा जाता है, मारपीट करने पे उभारा जाता है। हमें लोग वरगला रहे होते हैं कि लोग हमें गाली दे, है ना। आपके कोई ऐसे माशरे में ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमसे चाहते हैं कि हम बुराइयां करें, लेकिन हमें बुराई का जवाब कभी बुराई से नहीं देना, कभी बुराई से नहीं देना, है ना। हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हमसे बुरे अल्फाज कहते हैं, हमें तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उनको रोकें। नहीं रोक सकते तो कम से कम दिल में उसे बुरा जाने और ऐसे लोगों के पास उठने बैठने से बचें। बात बात में अब तो गाली इतनी आम हो चुकी है कि बातचीत में गालियां दी जाती, कोई खास नहीं, घरों के झगड़े में गालियां दी जाती। पहले तो इंसान दुश्मनों के सामने देता था, अब तो अपनी माँ बहन को गालियां दे रहा है ना। शौहर अपनी बीवी को गाली दे रहा होता, खुद भाई बहन को गाली दे के अपनी माँ को गाली दे रहा होता। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस पाक से ये मफहूम मिलता है कि माँ बाप के मरने के बाद एक हक है कि उन्हें गाली न दीजिए। लोगों ने पूछा, कौन अपने माँ बाप को गाली देता है? फरमाया, जब तुम दूसरे को गाली देते हो तो वो पलट के तुम्हें गाली देता है, गोया तुम उसे गाली देने पर तैयार कर। ना तुम दूसरों को गाली दो ना गाली सुनो, बात कर, संजीदगी वाली जिंदगी गुजारें, है ना, शाइस्ता जिंदगी गुजारें। आपस में भी बातचीत करें तो बड़े कूल नरम लहजे में बात करें। अम्मा से खाना मांगा, ठीक है, एक बार मांग लिया, दूसरे खाना नहीं निकला अभी तक, माँ है, उसकी भी मसरूफियात हैं, कुछ दिक्कत परेशान, आप ये भी पूछ सकते थे कि अम्मी क्यों नहीं निकला अभी तक, ये भी एक जुमला है। अम्मी कोई परेशानी तो नहीं है आपको, है ना। कभी अपनी माँ बहनों के पास हम नहीं बैठते। बहन से कभी पूछ लिया कि बहन आज तुम बड़ी परेशान लग रही हो, या बताओ आज तुमने क्या पढ़ाई की। आज ये प्रॉब्लम है ना कि कहते हैं मुसलमान की बहनें मुर्तद हो रही हैं। कौन मुसलमानों की हो रही है? हमारे आपके घर की जाती क्यों हो रही हैं? बहन तो अब तो औरतें अब तो मर्द भी गुमराह हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? कभी हमने बैठ के पूछा अपनी बहनों से, कभी बात की? तो माज़अल्लाह, तो आप तो नेक भले लोग हैं। बाहर आलम तो ये कि नौजवान लड़के दूसरे की बहनों से बात करना पसंद करते हैं, अपनी बहन से बात नहीं, जिससे बात करने पे अल्लाह अजर देता है, अल्लाह खुश होता है। मैंने आपसे कहा था ना, अपनी जिंदगी में वो काम लाएं जिनसे अल्लाह खुश होता है। तो अपनी बहन से बात करें, अपनी माँ को मोहब्बत से की निगाह से देखना, ये कामिल उम्रे का सवाब है, उम्रा या हज का सवाब। ऐसी रिवायत है कि अल्लाह ताला आता मुस्कुरा के अपनी माँ को देखना। कभी देखते हैं? कभी नहीं देखते।